हेलो। या हाँ, मैं त्रिवेणी सिंह, एसपी नमस्कार सर। आजमगढ़। नमस्कार सर। त्रिवेणी जी। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जी। सर बस 5 मिनट वेट कर रहे हैं। कोई बात नहीं। मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है। ठीक है। राइट सर। I think we can start the session today. So I would like to introduce myself again. My name is Sharmila Gupta, and my core area of expertise is artificial intelligence. So let me take the opportunity to introduce to Rahini Learning first. Rahini Learning is an enterprise with a vision to provide learning solution to businesses, entrepreneurs, and working executives. As technology is transforming faster than ever before, businesses, entrepreneurs, and professionals need to remain a step ahead in order to harness the power of technology to its fullest potential and to tap unlimited possibilities of professional excellence. As per the recent report published by Gartner last year, in a survey, 63% of the respondents indicated that a talent shortage was a key concern for their organization. So how do we help here? We fill this gap with very strong faculty having hands-on industry experience in cutting-edge technologies like artificial intelligence, cloud computing, data analytics, blockchain, cybersecurity, and many other areas. Rahini empowers executives to leverage the power of these niche technologies and excel in their career and businesses. Leveraging the tech-driven innovations, Rahini Learning has come up with various training programs in this regard. Here is a short video which will introduce our learning solutions. Today, we are privileged to have with us Dr. Triveni Singh, who is Superintendent of Police, currently posted in District Azamgarh in Uttar Pradesh. He is in charge of maintaining law and order, along with prevention and detection of all kinds of crimes under the sun. His core expertise is in tracking cybercrime cases, and his special area of operations are cybercrime and financial fraud. He has also served in insurance sector, jail department, rural development department in various capacity. Let me welcome Dr. Triveni ji to take over and share his experience on cybercrime. धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है सर। जी त्रिवेणी जी, आपकी आवाज आ रही है। कितना टाइम है मेरे पास?
आप जितना लेना चाहें त्रिवेणी जी, 3 to 4 का सेशन है, आप जितना ले सकते हैं। ठीक है। ये देखिए, जैसा उन्होंने, अमित ने हमको बताया कि जो आपने केसेस किए हुए हैं सिर्फ उसी पे बात करनी है। टेक्नोलॉजी पे तो आप बता ही रही हैं, टेक्नोलॉजी पे आप बताएंगे, लेकिन जो केसेस आज की डेट में हम लोगों के सामने आ रहे हैं, साइबर क्राइम के केसेस, त्रिवेणी तो जी कोई आपका वीडियो नहीं आ पा रहा है, आई एम सॉरी। वीडियो नहीं आ पा रहा? जी त्रिवेणी जी। अभी नहीं आ रहा? हाँ जी, हर्ष, अब आ गया त्रिवेणी जी, आ गया आपका आ वीडियो। गया? अब ठीक है। हम सभी दर्शक आपको देख सकते हैं। हाँ, तो ये जैसा कि देखिए, मैं साइबर क्राइम पे काम करता हूँ। वैसे तो मैं डिस्ट्रिक्ट चीफ हूँ यहाँ पुलिस का, तो लॉ एंड ऑर्डर भी मेरे जिम में है, ट्रैफिक भी है, फायर भी है, दुनिया की सारी चीज़ें जो है ना वो है। उसके बाद भी मेरा फोकस चूंकि साइबर क्राइम पे रहता है, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लोगों को शेयर करूँ। कभी आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा, कभी कहीं जा करके पढ़ लिया कि ये क्राइम हुआ, वो क्राइम हुआ। मैं ये चाहता हूँ कि सारे जितने भी आज की डेट में साइबर क्राइम के केसेज हो रहे हैं, मैं एक बार आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरह के क्राइम आज की डेट में हो रहे हैं। जैसे डिजिटल सिग्नेचर का फ्रॉड भी यहाँ पे लोग जो हैं, जो ऑडियंस है, वो कारपोरेट सेक्टर से ज्यादा है या स्टूडेंट्स हैं या सीएच हैं, क्या है, उसके हिसाब से हम बात करेंगे। सभी मिक्स्ड हैं त्रिवेणी जी, सभी ठीक है, फील्ड से लोग हैं आज हमारे साथ। ठीक है, तो हम कंप्लीट फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट की बात करेंगे। जी। पहले मैं ये कि साइबर क्राइम का क्या लेटेस्ट क्या सिनारियो है, किस तरह के क्राइम हो रहे हैं। तो आज की डेट में स्पूफिंग का एज है, हर चीज की स्पूफिंग है। जैसे मोबाइल नंबर, अगर हम चाहें तो आपका मोबाइल नंबर से अभी मैं कॉल किसी को भी कर सकता हूँ, वो आदमी ये समझेगा कि आपके फोन से आ रहा है। फैक्ट ये है कि वो नंबर स्पूफ हो जा रहे हैं। अगर हम आपकी मेल आईडी यूज करना चाहते हैं, किसी को मेल करना चाहते हैं, तो आपकी मेल आईडी ही दिखेगी उसको, आपका ही डिस्प्ले नेम देखेगा। जब हम हेडर में जाके एनालिसिस करेंगे तब पता चलेगा नहीं, ये तो ये आपका नहीं है, ये किसी और का है, लेकिन हम उस टाइम पे स्पूफ कर देंगे। तो आपने देखा हर चीज की स्पूफिंग है। इवन मैंने देखा अभी हम लोगों ने कई गैंग क्रैक किए जिसमें वो फिंगरप्रिंट की क्लोनिंग कर देते थे। तो फिंगरप्रिंट की क्लोनिंग करने से क्या होता था कि वो जो फिंगरप्रिंट एक्सेस हम बड़ा उसके साथ कहते हैं कि यहाँ तो बायोमेट्रिक एक्सेस है, और जब हम उसी की क्लोनिंग कर दे रहे हैं तो उसको अब हमको आने के अटेंडेंस लगाने की हमको जरूरत नहीं है। या हमको अगर माइक्रो एटीएम है, उस पर हम फिंगरप्रिंट के थ्रू अगर हम आधार कार्ड AEPS जो है उससे पैसा निकालना चाहते हैं तो कोई जरूरी नहीं हम वहाँ रहें, हमारा आधार नंबर होना चाहिए और मेरे फिंगरप्रिंट का क्लोन होना चाहिए, मैं 10,000 पर डे निकाल सकता हूँ। ये क्राइम हुए हैं, इसमें लोग अरेस्ट हुए हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ आज की डेट में सिर्फ ये नहीं है कि आपने एटीएम का अपना पिन शेयर कर दिया तो आपका पैसा निकल गया। अब तो डेबिट कार्ड की बाकायदे क्लोनिंग हो रही है, क्लोनिंग विद इन मिनट्स हो जाएगी। आप एटीएम बूथ पे जाइए और बाकायदे उनकी स्कीमर लगे रहते हैं, एटीएम मशीन में स्कीमर लगे रहते हैं, पूरा आपका मैग्नेटिक डेटा कॉपी कर लेते हैं। आपके लिए जो छोटा सा जो स्पाई होल कैमरा होता है वो भी होता है, और अदरवाइज भी वो लड़के पीछे से नोट करते रहते हैं। आपका पिन होना चाहिए, 4 डिजिट पिन हो गया, आपका पूरा डेटा क्लोन हुआ। तो स्कीमर की जगह पे जो ये स्कीम करके डेटा प्लस आपका जैसे उनको नंबर मिल जाता है, पिन नंबर मिल जाता है, वो गाड़ी में जाते हैं और तुरंत डुप्लीकेट जो है डेबिट कार्ड प्रिंट कर लेते हैं। ब्लैंक कार्ड आप देखिए फ्लिपकार्ट पे और जाइए, ब्लैंक कार्ड 18 रुपये के हिसाब से ब्लैंक कार्ड आप जितना मंगवाना चाहते हैं कुरियर वाला भेज देगा। दूसरा स्कीमर 6-7 हजार रुपये के 3,500 से लेकर 6-7 हजार रुपये तक मिल रहा है। प्लस जो रीडिंग और राइटिंग मशीन हो भी 25,000 रुपये में मिल जा रहा है, बाकायदे ब्रांडेड नेम है। आप यूट्यूब पे जाइए और आपको ये मिल जाएगा, आप तुरंत ईबे पे वो करिए, वो डिलीवर हो जाता है। आप 3 चीज आपको चाहिए, आपने स्कीमर लगा दिया उस एटीएम बूथ की मशीन में, आपने कोई कैमरा लगा दिया जो कीबोर्ड फेसिंग हो या की लॉगर लगा दिया उसके नीचे छोटा सा, और या आप मैनुअली भी अपने नेकेड आई से आप रीड भी कर सकते हैं। लड़के बड़े स्मार्ट हैं आज की डेट में, रीड के तो ये 3 तरीके से है। अब आपका डेबिट कार्ड का क्लोन बन गया हमारे पास, आपका डेबिट कार्ड आपके पॉकेट में, और हम डेबिट कार्ड यूज करके पैसा निकाल रहे हैं। तो आपका क्रेडिट कार्ड आपके पास में है। अगर हम इंटरनेशनल किसी वेबसाइट पे अगर हम कोई फ्रॉड करना चाहते हैं या कोई चीज गुड्स खरीदना चाहते हैं तो उसमें तो OTP भी नहीं मांगता। तो अगर हमने सिम स्वैपिंग के केसेस देखे होंगे, सिम स्वैप कर ले रहे हैं। अगर मैं आपको एक मैसेज भेजा कि आपका 3G सिम है और मैं 4G में एक्टिवेट कराना चाहता हूं तो क्या जाता है, आपके ऑपरेटर को एक मैसेज आता है,
आता है यस और नो करने का, तो वो आपके नंबर के बिहाफ पे वो करके एक मैसेज भेज देते हैं कि यस और नो कर दीजिए। जैसे आप ये और एक नंबर देते हैं कि इस नंबर पे आप मैसेज कर दीजिए, आपका ये सही हो जाएगा, आपको सही बैंडविड्थ मिल जाएगी, आपको ये फ्री स्पेस मिल जाएगा। इस तरह से लुभावनी चीजें बता देते हैं। आप जैसे मैसेज करते हो वैसे आपका ये 3G ब्लॉक होकर 4G में कन्वर्ट हो जाता है, 4G में कन्वर्ट हो गया। अब वो आपका नंबर भी ले लिया, और नंबर से आप देखिए यूपीआई के सारे ऑपरेशन जो यूपीआई बेस्ड जितने भी ट्रांजेक्शन है वो सब नंबर बेस्ड है। हमने मोबाइल में आपका सिम डाला, आपका अकाउंट दिखने लगा। अब अकाउंट दिखने लगा तो हमको 2-3 चीजें इन्फॉर्मेशन चाहिए कि आपके डेबिट कार्ड का एक्सपायरी क्या, डेबिट कार्ड का नंबर क्या है, एक्सपायरी क्या है, एक्सपायरी के बाद ओटीपी। तो ओटीपी तो चूंकि आपका सिम मेरे पास आ ही गया तो ओटीपी लेकर के हम करने लगते हैं, आपका पूरा अकाउंट खाली हो जाता है। तो इस तरह से आज की डेट में आप ऑनलाइन बैंकिंग का देखिए, आप दुनिया भर के की लॉगर हैं, मॉलवेयर आया है, बैंकिंग मॉलवेयर, स्पेसिफिक मॉलवेयर हजारों की संख्या में है। हम जैसे ही कोई मेल डाउनलोड कर लेते हैं और पता चला कोई इन्फेक्टेड फाइल आई, वो इन्फेक्टेड फाइल में कोई मैसेज तो सिंपल सा आपको रहेगा, लेकिन जो उस हो चुकी इन्फेक्टेड फाइल रहेगी तो पूरा आपका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। अब वो आपका सब मेल भी रीड कर रहा है, आपका ओटीपी भी रीड कर रहा है, आपका सारा कॉन्टैक्ट भी देख रहा है, सब कुछ देख रहा है। अदरवाइज भी आप देखिए जितने भी हम लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, वो एप्लीकेशन में 10 तरह की एक्सेस मांगता है। हमको माइक्रोफोन का भी एक्सेस चाहिए, हमको कैमरा का भी एक्सेस चाहिए, हमको आपका मेल का भी एक्सेस चाहिए, इवन वो कहता है सिस्टम, आपके सिस्टम डिवाइस का भी हमको एक्सेस चाहिए। तो जब सब पूरा फुल कंट्रोल हमने दे दिया तो हैकर के हाथ में, आप हैकर के कमांड पे है, उनका पूरा कमांड कंट्रोल सिस्टम बना हुआ है, वो वहीं से कमांड कर रहे हैं, वहीं से सारा चीजें एक्सेस कर रहे हैं। आपका मोबाइल पूरा का पूरा मोबाइल आपका कंप्रोमाइज हो गया। अब वो जो चाहे वो आपके मोबाइल फोन से, हो चाहे तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करें, वो आपके मोबाइल फोन से चाहे फेसबुक ऑपरेट करें, लिंक्डइन करें, ट्वीट करें, आप कर क्या सकते हैं। आप देखिए कारपोरेट में आजकल कारपोरेट में कितनी राइवलरी है एक दूसरे का। जैसे हमने एक तरह का इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चल रहा है। हम जो आपकी क्या प्लानिंग है, क्या प्रोजेक्ट है, हम जानना चाहते हैं तो क्या करना है। जो CXO लेवल के लोग हैं उनको कॉम्प्रोमाइज कर लेना है। वो क्या डिस्कशन चल रहा है हम ये भी सुन रहे हैं। छोटे छोटे बग्स आ रहे हैं, आपके बगिंग डिवाइसेज आ रही हैं। आप कहीं कमरे में जाइए, आपको पता भी नहीं चलेगा, वो छोटे छोटे बगिंग डिवाइसेस हैं, हमने बाहर से फोन किया, वो ऑन हो गया, आपको पता भी नहीं चलेगा, और सारी की सारी रिकॉर्डिंग हो गई। ये क्राइम का, आज की डेट में क्राइम का सिनारियो इस लेवल पे चला गया। आपने देखा अभी यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में देखिए रशियन हैकर्स ने क्या किया। वो पूरा सेंटिमेंट्स मैनिपुलेट कर दे रहे हैं। सोशल मीडिया जबरदस्त टूल बना हुआ है, फेक न्यूज का, फेक न्यूज वायरल कर दो, कोई भी न्यूज 5% लोग समझते हैं कि गलत है, 95% लोग तो जो दिखता है कंप्यूटर पे वो सोचते हैं कि यही सब कुछ है, यही सब कुछ है। ये चीज, हाँ हेलो, तो ये है आज की डेट में क्राइम का सिनारियो। आप कोई भी ऐसा फेक वेबसाइट आप 1 घंटे में बना लीजिए। फेक वेबसाइट बनाने में क्या जाता है, अगर हमारी नियत अभी, अगर मेरा इंटेंट खराब है आज की डेट में और मैं चाहूँ कि 2 घंटे बाद से मेरे पैसे आने लगे, तो 2 घंटा मैक्सिमम 3 आवर्स हमको एक GoDaddy पे जाकर वेबसाइट खरीदना है। 10 तरह के टेम्पलेट्स आ रहे हैं, रेडीमेड टूल्स आ रहे हैं, हम तुरंत वेबसाइट बनाया। एक किसी पेमेंट गेटवे वाले को फोन किए, मैंने कहा वो हमारे पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट कर दो, और फटाक से वायरल कर दिए कि भाई आपको 70% डिस्काउंट पे मोबाइल फोन मिल रहा है, और अगर आपको परचेज करना हो तो तुरंत इमीडिएट ऑर्डर, लिमिटेड स्टॉक्स करके मेल वो डालिए। और वायरल में आपको 1000 को अगर वायरल करेंगे, 1000 लोगों ने अगर उस चीज को रीड किया तो निश्चित से 5, 10, 15 लोग उसके शिकार हो जाते हैं। पैसा आपने दे दिया, पेमेंट गेटवे से किसी अकाउंट में गया, वो अकाउंट बोगस अकाउंट था या हायर्ड अकाउंट था या किसी रिक्शे वाले का अकाउंट था, आपने तुरंत उसके डेबिट कार्ड से पैसा कहीं और निकाल लिया या किसी और अकाउंट में ट्रांजेक्शन कर दिया है, वॉलेट किया, वॉलेट भी फेक KYC पे बना हुआ है। तो ये आज की डेट में साइबर क्राइम, ये मेरा तो ये मानना है कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जिसको लेकर के क्राइम ना हो रहा हो। आप देख लीजिए इतने भी टेलर्स हैं, उनके यहाँ टेलर्स के नाम पे देखिए, मैं फेमस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अमेजोन की बात नहीं कर रहा हूँ, eBay की नहीं बात कर रहा हूँ, या फ्लिपकार्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप थाउजेंड्स देखिए इस तरह के शॉपिंग वेबसाइट्स बने हुए हैं, और बड़े लुभावने आपको एड्स आएंगे और आदमी समझता है कि ये तो कंप्यूटर है। हम बिलीव करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, जो दिखता है हमको लगता है कि सब कुछ सच है। तो आज की डेट में जब सारा कुछ स्पूफ हो रहा,
हमारी आईडी स्पूफ हो रही है। मेरे नाम से खुद एक लड़का यहाँ ट्रू कॉलर पे लिखा है एसपी आजमगढ़ और त्रिवेणी सिंह डाला, और उसको किसी को फोन कर देता है, नया सिम खरीदा, और आपने देखा होगा ट्रू कॉलर में जो नाम आप पहला सिम खरीदिए और जो नाम आप डाल देंगे, अब मेरा एक फोटो कहीं से मीडिया से उठा करके फोटो डाल दिया, अब लोग समझते थे एसपी आजमगढ़ बोल रहे। फिर मैंने उसको अरेस्ट कराया। हमारे डीजीपी, हमारे जो डायरेक्टर जनरल पुलिस है, उनके नंबर से, उनके नंबर का स्पूफ करके डीआईजी और सीनियर अधिकारियों को फोन जाते थे और 10 तरह के ऑर्डर जाते थे। बाद में ये हमने क्रैक किया, उसको पता चला कि वीओआईपी जो इंटरनेट टेलीफोनी है या वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल है, उसको मिसयूज करके लड़के इतना बड़ा क्राइम कर रहे हैं। आप देखिए इंटरनेट टेलीफोनी से कितना हो रहा है। वर्चुअल नंबर मिल रहे हैं, वर्चुअल नंबर अगर आपको चाहिए अमेरिका का नंबर, तो देखिए 50 वेबसाइट है, वेबसाइट पे जाइए, आप कहिए हमको अमेरिकन नंबर चाहिए, आपको बकायदा ओटीपी भी आ जाएगा, आपका व्हाट्सएप भी काम करने लगेगा। अब हम हैं इंडिया में, नंबर हम यूज कर रहे हैं लंदन का या यूके का, अमेरिका का, +1 से आ रहा है। हम अब बात उससे थोड़ी सी अंग्रेजी में करेंगे, भाई हम तो अमेरिका के इतने बड़े वो हैं, रिटेलर्स हैं, हम आपको पार्टनर बनाना चाहते हैं, ये बनाना चाहते हैं। 10 तरह का क्राइम आज की डेट में टेक्नोलॉजी की वजह से। मेरा ये मानना है कि जितने कारपोरेट के लोग बैठे हुए हैं या जितने लोग बैठे हुए हैं, अगर हमने टेक्नोलॉजी की समझ नहीं अपने में लाई, टेक्नोलॉजी मैंने देखा है कि पुलिस के लोग पता नहीं इसमें हैं या नहीं है, या मैं उनकी बात करूं जो कारपोरेट इन्वेस्टिगेटर हैं, जो कारपोरेट इंडस्ट्री में इन्वेस्टिगेशन का काम देखते हैं, या जो प्राइवेट डिटेक्टिव्स का काम कर रहे हैं, पहले तो अपने को टेक्निकली अपडेट करें। क्योंकि आजकल जो क्राइम का प्लेटफॉर्म ही डिजिटल प्लेटफॉर्म है, तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म कैसे काम करता है, हमारी वेबसाइट काम कैसे करती है, हमारा टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क कैसे काम करता है, हमारा बैंकिंग सिस्टम का जो कोर है, जो कोर बैंकिंग सिस्टम है, वो कैसे काम करता है। अगर आपको आइडिया नहीं रहेगा कि अगर आप बैंकिंग इन्वेस्टिगेशन में गए और आपको ये नहीं पता कि फिनेकल कैसे है, फिनेकल्स में क्या फील्ड्स बने रहते हैं, यूजर है उसमें मेकर चेकर का क्या कंसेप्ट है, कैसे ये करते, तो ये जब तक आप डोमेन का एक्सपर्टीज नहीं होगा तब तक आप अच्छे एक्सपर्ट नहीं बन सकते। और डोमेन के अगर आप इन्वेस्टिगेटर सही मानने में बनना चाहते हैं, अगर फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट में वाकई आप चाहते हैं कि आपका नाम हो या आप कुछ केसेस करें, क्रैक करें, तो आपको साइबर फॉरेंसिक डालना पड़ेगा। साइबर फॉरेंसिक में डीप स्टडी होनी चाहिए कि कौन से टूल है जिससे हम क्या रिकवर कर सकते हैं, या जो टेलीकॉम इंडस्ट्री के जो हमारे लॉक्स आते हैं, वो हम कैसे उसको सेल आईडी क्या होता है, हमारा जीपीएस क्या होता है, हम ट्रायंगुलेट कैसे करके निकालते हैं, हमारा वेबसाइट फंक्शन कैसे करता है। अगर हमारे वेबसाइट और किसी हम अपने कंप्यूटर से कोई परचेज ऑर्डर करते हैं, तो ये जो डेटा जा रहा है किस फॉर्मेट में जा रहा है, क्या हम सिक्योर सिस्टम पे कर रहे हैं, या हमारा वेब सर्वर तक पहुंच रहा है, तो हम वेब सर्वर से डेटा कैसे लेंगे, या वेबसाइट से पैसा जा रहा है तो पेमेंट गेटवे कैसे इंटीग्रेट हुआ है, पेमेंट गेटवे से इंटीग्रेट होने के बाद ये कहाँ से हमको डिटेल मिलेगा, कहाँ से ट्रांजेक्शन मिलेगा। तो ये पूरी दुनिया लॉ है, प्लस आपका जो आईटी एक्ट है वो क्लियर होना चाहिए, साइबर लॉ है, उससे रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जितने भी लॉ हैं, चाहे पेटेंट हो, चाहे डिजाइन हो, चाहे कॉपीराइट हो, चाहे आईटी एक्ट हो, ये जानना पड़ेगा आपको। प्लस आईपीसी और एविडेंस एक्ट भी जानना पड़ेगा कि सब कुछ अल्टीमेटली एविडेंस है। और जब एविडेंस है तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की बात आती है, जब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की बात है तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को हम कैसे कलेक्ट करें, कैसे एनालाइज करें, कैसे कोर्ट में प्रोड्यूस करें, कौन आदमी एक्सपर्ट विटनेस बनेगा बाद में जाकर के, आप चेन ऑफ कमांड क्या होगा, हम एविडेंस को कंटेन रखें कैसे। तो ये पूरा एक बहुत ये फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट एक कंप्लीट डोमेन है, और इस डोमेन के सब डोमेन्स इतने हैं। आपको आरबीआई के रूल्स क्या है, बैंक के अपनी इंटरनल गाइडलाइंस क्या है, आपको ऑडिटिंग की स्किल आनी चाहिए, आपको आईएएस ऑडिटिंग की आनी चाहिए, प्लस ऑडिटर जो फाइनेंशियल जो बैलेंस शीट वगैरह रीड करते हैं, आपको थोड़ा सा आइडिया उसका भी होना चाहिए। तो ये उसके बाद साइबर लॉ के जो आईटी एक्ट ही नहीं, उसके बाद आरबीआई के क्या रूल्स है ये भी जानना पड़ेगा, क्या नोटिफिकेशन है जानना पड़ेगा, मिनिस्ट्री मीटी के क्या डायरेक्शन आ रहे हैं ये भी जानना चलेगा। आपको ये भी जानना पड़ेगा कि इस इन्वेस्टिगेशन में कौन कौन से गवर्नमेंट एजेंसी हमको मदद कर सकती है, जैसे सर्टेन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है, वो हमारी किस तरह से मदद कर सकती है, या जो IC4 बना हुआ है हमारा इंटरनेट कंप्लेंट क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर बना, उससे हम कैसे मदद दे सकते हैं, हम पुलिस के पास कैसे जाएं, पुलिस में पुलिस स्टेशन जाएं या साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन जाएं, या ऑनलाइन हम कंप्लेंट लॉन्च करते हैं, ऑनलाइन करें तो कैसे करें, किस वेबसाइट पे करें, क्या हम जनसुनवाई पे जाएं या cybercrime.gov.in पे जाएं, या हम PG पोर्टल पे जाकर के करें, या थाने का ही हम कहीं गूगल करके।
ये ढेर सारी चीजें आपको जाननी पड़ेगी। इसमें आपको डोमेन की एक्सपर्टीज लेनी पड़ेगी, आपको फोरेंसिक जानना पड़ेगा, आपको बैंकिंग टेक्नोलॉजी पे काम करना पड़ेगा, आपको वेबसाइट, आपको इंटरनेट टेक्नोलॉजी जाननी पड़ेगी। अगर कोई डोमेन है, सपोज कर लीजिए कि रोहिणी लर्निंग है, इसका अगर कोई वेबसाइट है तो इसका कौन कहाँ होस्ट हुई है वेबसाइट, ये कौन इसका एडमिनिस्ट्रेटर है, इसका टेक्निकल आदमी कौन है, ये सारा आपके हुईज डिटेल्स में मिल जाता है। अगर हमको आईपी आ रही है तो हम आईपी से फिर आईपी लुकअप में जाकर के हम देखें कि किस टेलीकॉम ऑपरेटर का ये आईपी है, फिर उसके कौन से टाइम स्लॉट दे करके हमको उससे इंफॉर्मेशन मंगानी है। सर्वर फॉरेन में है, मान लीजिए गूगल है तो गूगल का सर्वर फॉरेन में है, फेसबुक का सब यूएस बेस्ड है, वो फॉरेन से लॉग कैसे आएगा, वो लॉग किस फॉर्मेट में आएगा, हमको अगर टाइम जोन का डिफरेंस है, इंडिया का टाइम जोन और बाहर का टाइम जोन 5.5 घंटे का डिफरेंस है, उसको हम कैसे करके फिर मांगेंगे। अदरवाइज 5.5 घंटा पे किसी दूसरे आदमी को पकड़ लेंगे। अगर ये टेक्नोलॉजी की समझ नहीं रहेगी तो क्राइम किसी और ने किया, पकड़ लेंगे, आप किसी और को गिरफ्तार कर लेंगे। 10 तरह का बाद में लिटिगेशन, 10 तरह के कोर्ट केसेस। इसलिए ये क्राइम की दुनिया, जो साइबर क्राइम की दुनिया है, ये मैं तो इसको ये कहता हूँ कि पता नहीं इसका क्या होगा। हम हर चीज जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लेके जा रहे हैं। अब देखिए आज की डेट में मैं अब 2-3 केसेस बता रहा हूँ। अभी ऑनलाइन एग्जामिनेशन की बात चल रही है कि अभी 1 महीना पहले हम आपको बताएं कि यहीं पे सेंट जेवियर स्कूल है आजमगढ़ में, वहाँ क्लास के टीचर ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उसमें 12th क्लास के बच्चों को मैथ पढ़ा रहे थे व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो एक नंबर से रिक्वेस्ट आता है कि मैं बीभू बोल रही हैं, बीभू ये है मेरा, ये नंबर है और इसको भी ऐड कर दीजिए। और जैसे वो नंबर व्हाट्सएप में ऐड करते हैं, उसने पोर्नोग्राफिक वेबसाइट, पोर्नोग्राफिक छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स भेजना शुरू किया, फ्लड कर दिया एकदम पूरे व्हाट्सएप। अब बताइए 12th क्लास के बच्चे और पोर्नोग्राफी देख रहे हैं। अब इसमें एडमिनिस्ट्रेटर को हम लोगों ने अरेस्ट किया। वो जो बच्चा अल्टीमेटली ट्रैक करके उसको, तो बच्चा 10th का बच्चा था, 10th का बच्चा वीडियो क्लिप्स व्हाट्सएप ग्रुप 12th के बच्चों को भेज रहा है, और वो भी सिंपल सा रिक्वेस्ट किया टीचर को, टीचर ने ऐड कर दिया। तो अब हमको ये भी सोचना पड़ेगा कि हम एज ए एडमिन हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या हम ऑथेंटिकेट कर रहे हैं, क्या हम कोई लॉग रख रहे हैं, अकाउंटेबल कैसे बनाएंगे अगर कोई गलती हो जाती है, क्या हम ऑथराइज हैं इस चीज को एक्सेस करने के लिए। जो AAA का कॉन्सेप्ट है कि ऑथराइजेशन है, ऑथेंटिकेशन है, अकाउंटेबिलिटी, क्या हम इस चीज का अपने दिमाग में रखे हुए हैं? हम क्या, जो हमारा सिक्योरिटी के बेसिक फंडामेंटल्स हैं कि अगर ऑनलाइन सिक्योरिटी की हम बात करें तो कोई भी अगर डेटा है या कोई भी हमारे इंफॉर्मेशन, चाहे हमारा पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन हो या हमारा सेंसिटिव पर्सनल डेटा हो, वो हमारी 3 चीजें जो बेसिक सिक्योरिटी फंडामेंटल है कि हमारा एक तो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी चाहिए, दूसरा उसकी इंटीग्रिटी इंटैक्ट रहनी चाहिए, तीसरा जब हम चाहे अवेलेबल रहे। अब किसी ने डीडोस अटैक किया तो आपको ये भी तो जानना पड़ेगा डीडोस अटैक कैसे हो सकता है। किसी ने रैंसमवेयर अटैक किया, पूरी फाइल ही इनक्रिप्ट कर दी, तो रैंसमवेयर अटैक कैसे हुआ, रैंसमवेयर अटैक। अब वो कहता है कि भाई आप बिटकॉइन से पेमेंट करिए, तो बिटकॉइन क्या है, तो बिटकॉइन एक्सचेंज क्या है, तो अगर बिटकॉइन से किसी ने पेमेंट किया तो बिटकॉइन के लेजर हम कैसे निकालेंगे, हम कैसे ट्रैक करेंगे इन सब सारी चीजों को। तो हम कुल मिला के, मैं इतने कम टाइम में सिर्फ यही बता सकता हूँ, मैं आपकी आंखें अभी कल आज मैंने, आप देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज है, आज मैंने अरेस्ट किया, वो टाइम्स ऑफ इंडिया में आज छपा है, मैं शेयर भी कर दूंगा उसको। एक लड़का फ्री फायर गेम पे गेम खेल रहा था, छोटा बच्चा 6 क्लास का, यहीं का लड़का है। उसके पापा प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं, उसके पापा के अकाउंट में 8 लाख रुपए थे। अब वो क्या, फ्री फायर में क्या होता है कि हैक्स खरीदने पड़ते हैं, हैक्स या डायमंड्स वगैरह खरीदने पड़ते हैं, ताकि आपको एडवांस वेपन मिल सके, एडवांस यूनिफॉर्म और इस तरह की चीजें, एक्सेसरीज होती हैं, उसको खरीदने के लिए पैसा देना पड़ता है, और तभी आप वर्ल्ड चैंपियन या इंटरनेशनल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो वो लड़कों का एक गैंग बनाया, उसमें एक BA पार्ट 2 का लड़का था, वो एकदम जो उसको नहीं कहते हैं, आज की डेट में गेमिंग तो एडिक्शन बन चुका है। वो लड़का लेवल 74th लेवल पे था। उस लड़के ने इसको पापा का डेबिट कार्ड कंप्रोमाइज करके पूरा का पूरा 8 लाख रुपए का उसने वो खरीद लिया, डायमंड्स और हैक्स खरीद करके 4-5 लड़कों में उसको बांट दिया। उसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी, उसको भी बांट दिया, ताकि जब हम वार में जाएं तो कवरिंग करें। वो लड़के कवरिंग करने के लिए भी उनको वेपन चाहिए, 10 तरह की चीजें खरीद करके, लो भाई तुम ये हैक्स लो, तुम ये डायमंड्स लो, और तब वो आएगा उस फील्ड में, ताकि वो वर्ल्ड चैंपियन बने या इंडिया का। अब बताइए उस बेचारे की टीचर
8 लाख रुपया बेटी की शादी करने के लिए रो रहा था, बेटी की शादी करने के लिए रखा था। 4 महीने बाद उसकी बेटी की शादी, 8 लाख रुपए चले गए। तो ये है आज की डेट में क्राइम का, ये है पूरा ये जो साइबर क्राइम लैंडस्केप। मैं तो ये कहता हूँ कि हर आदमी को साइबर क्राइम से रिलेटेड, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड चीजें पढ़ते रहनी चाहिए। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी नहीं बनेगी, क्वेरी नहीं आएगी कि यार हम कैसे। अदरवाइज लोग कहते हैं अरे मेरा तो ये हो गया, मेरा तो फेसबुक हैक हो गया, अभी देखिए आप बड़ा अच्छा चल रहा, फेसबुक हैक कर रहे हो। तो फेसबुक हैक थोड़े कर रहा है। फेसबुक में आप अगर किसी नंबर बेस्ड से आपने किया तो फेसबुक में नंबर डाल दिए यूजर आईडी में, और आपका नंबर उसमें डाल दीजिए, पासवर्ड में डाल दीजिए। तो आपको 2%, 3%, 5%, जैसे मेरे ऑफिस के 4 लड़के कॉम्प्रोमाइज हुए, चारों का पासवर्ड उनका मोबाइल नंबर था। और सबसे जैसे उनके फेसबुक अकाउंट का एक्सेस उनको मिल जाता है, वो सारे उनके दोस्त मित्रों को मैसेज करते हैं, यार मैं हॉस्पिटल में हूँ, हमको 4-5 हजार रुपये की जरूरत है, हमारे ये पेटीएम नंबर है, इसमें डाल दो प्लीज, हम आते ही तुमको दे देंगे ऑफिस। अब आप संडे का दिन है, ऑफिस कोई आया नहीं, आप समझते हैं यार जेन्युइन है, ये हॉस्पिटल में होगा, वरना ये 4,000 रुपया क्यों मांगता है, आप 4,000 रुपये डाल दिए। अब 200 लोगों को मैसेज इस तरह का चला गया, 200 लोगों ने, किसी ने 2,000, किसी ने 5,000, अगर 10 लोग भी डाल दिए तो उसका 50,000 हो गया क्रिमिनल का। तो हमने तो देखा, मैं अभी तक 600 प्लस लोगों को मैं जेल भेज चुका। मैं आपके नोएडा में, गुड़गांव में, दिल्ली में कई बार रेड किया, कई बार 121 लोगों को एक साथ, 121 लोगों को अरेस्ट किया, 89 लोगों का बकायदे एकदम जैसे कारपोरेट इन्वायरमेंट, जैसे आप बिग 4 की ऑफिस देखिए, कोई भी सोफिस्टिकेटेड ऑफिस देखिए, उसी तरह का एग्जैक्टली वैसा ही इन्वायरमेंट, उसी तरह से आपको रिसेप्शनिस्ट बैठे मिलेंगे, उसी तरह से बच्चे अपना कंप्यूटर पे काम करते दिखेंगे, वैसे पूरा कारपोरेट स्ट्रक्चर कि हमारा एचआर का हेड है, फाइनेंस का हेड ये है, सीईओ ये है। सीईओ बीएमडब्ल्यू से आ रहा था जब उसको हमने अरेस्ट किया, क्या फेक कॉल सेंटर चला रहे हैं टेक सपोर्ट का, टेक सपोर्ट के नाम पे फॉरेनर्स को लूट रहे हैं। कोई एक मॉलवेयर भेजा, उसका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो गया, कॉम्प्रोमाइज होने के बाद वो खुद ही, आप अगर ये मॉलवेयर हटाना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल कीजिए, एक टेलीफोन डायल बना रहता है, उस पर जैसे कॉल करते हैं वो अपने आप रूट होकर के लैंड उन्हीं बच्चों पे आता था। अब बच्चे कहते हैं ठीक है, कोई परेशान होने की बात नहीं है, आप $80 दे दीजिए, आपका अभी, हम माइक्रोसॉफ्ट से बोल रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट की टेक सपोर्ट टीम से बोल रहे हैं, आपका अभी ठीक कराते हैं। डेल की उसे टेक सपोर्ट सेंटर से बोल रहे हैं, HP के टेक सपोर्ट सेंटर से बोल रहे हैं। तो लोगों को विश्वास होता है कि सही है बोल रहे हैं सब बच्चे, थोड़ा सा अंग्रेजी बोलने का उनका वही सीख लेते हैं। अब तो लाखों लोगों को ऐसे कॉल करते रहेंगे, 10,000 लोग भी अगर फंस गए तो सोचिए उनका कितना बड़ा उनके अकाउंट में पैसा आ रहा है। तो इस तरह से आज की तो दुनिया ही अजीब हो गई है। पहले जब हम लोगों ने नौकरी ज्वाइन किया था तो हम लोग यही देखते थे, घर में चोरी करते थे, डकैती करते थे, रास्ते में मार के लूट लेते थे। अब क्या मारने की जरूरत है, हमको बैंक लूटना होगा, ऑनलाइन बैंक रॉबरी करेंगे। हमको किसी को लूटना होगा तो उसका पेटीएम वॉलेट अटैक करेंगे, उसका अकाउंट अटैक करेंगे। हमको घर में जाने की जरूरत क्या, हम तो 5 स्टार बैठ करके करेंगे। एक लड़के को मैंने पकड़ा, वो क्या करता था, विदेश का क्रेडिट कार्ड यूज करके सारे 5 स्टार में घूमता था, खूब खाता था, पीता था, फ्लाइट से जाता था, आता था, फॉरेनर्स का करता था। जब मैंने उसको 5 स्टार से ही उठाया तो मैंने कहा कि भाई तुम ये क्यों करते हो, तो उसने कहा कि सर ये बताइए आपके पास कोई कंप्लेंट है किसी की, क्योंकि मैं तो इंडिया का कोई क्रेडिट कार्ड यूज ही नहीं किया। बात भी सही। अच्छा मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी त्रिवेणी जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल सन्नाटा है क्लियर इसलिए आ मैं रही कह है रहा हूँ। त्रिवेणी जी। आप मैं इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं और इतनी अच्छा इन्फॉर्मेशन और नॉलेज आप दे रहे हैं। अरे मैं तो शॉक्ड हो गया, मैं सोचा टाइम जो है। ठीक है कोई बात नहीं, चलिए अच्छी बात है। तो जब उस लड़के को अरेस्ट किया, अब देखिए उसने कहा साहब कोई कंप्लेंट है? सही बात है, मेरे पास कोई कंप्लेंट नहीं है, क्योंकि वो कैनेडियन का यूज कर रहा है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ही का मैं क्रेडिट कार्ड दे दूं किसी फॉरेनर्स को तो आपको ओटीपी तो आएगा नहीं। अगर फॉरेन की वेबसाइट पे अगर हम करना चाहें या फॉरेन से यहाँ करना चाहे तो जो एसएमएस डिलीवर होता है वो बैंकिंग सिस्टम में ये है कि एसएमएस यहीं लोकली डिलीवर होता है। अगर इंटरनेशनल एसएमएस डिलीवर करने लगेंगे तो काफी पैसा लगेगा। तो बैंकिंग ने क्या किया कि भाई लोकल हम एसएमएस डिलीवर करेंगे। तो जब अगर हमने मान लीजिए ebay.com पे अगर परचेज किया तो एसएमएस इसलिए नहीं आएगा, उसका सर्वर ही फॉरेन में। हम अगर ebay.in पे अगर हम करेंगे तब वो आएगा हमारा। तो इस तरह से हम क्यों करेंगे? हम क्रेडिट कार्ड पता चला कि हम घाना के किसी का ले लेंगे, हम सिंगापुर के किसी आदमी का ले लेंगे और क्रेडिट कार्ड यूज करते रहेंगे, मस्ती मारते रहेंगे। अब वो क्या जाएगा, अगर मान लीजिए वो कंप्लेनर उसका तो पैसा निकल गया, अल्टीमेटली पुलिस कहेगी यार कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप कहीं भी जाएंगे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर आ भी गया समझ में तो वो कंप्लेन लॉन्च करेगा अपने पुलिस को,
वो पुलिस के माध्यम से उसके मिनिस्ट्री होम में जाएगा, वहां से इंटरपोल में जाएगा, इंटरपोल से फिर हमारे यहाँ आएगा, फिर सीबीआई के थ्रू हमारे यहाँ स्टेट पुलिस, ऐसे करते करते आने में 6 महीने लगे। क्यों कि ग्लोबल लेवल पे हमारा कोई इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इतना, कोई सिस्टम हमने डिवाइस नहीं किया कि ऑथेंटिकेट कर दें, सबको ये पता चल जाए कि भाई अगर सिंगापुर से हम कनेक्ट हो रहे हैं तो उसको पता चलना चाहिए ना कि त्रिवेणी सिंह एसपी ही ईमेल आईडी यूज कर रहा है, या ये जो कम्युनिकेशन है ये ट्रस्टेड सोर्स से आ रहा है। इस तरह का ग्लोबल इंटरनेशनल लेवल पे कुछ है ही नहीं। तो वही जाता है पन्ना जो हार्ड कॉपी घूमती रहती है ऐसे ऐसे, इसलिए इस तरह से तो कोई उसका कंप्लेंट आ ही नहीं पाएगा जिंदगी भर में। तो अच्छा, डार्क वेब पे जाइए, डार्क वेब पे दुनिया भर की साइट से आप जितना चाहिए उतना क्रेडिट कार्ड का ले लीजिए। क्रेडिट कार्ड में क्या डिटेल चाहिए आपको? क्रेडिट कार्ड के नंबर, एक्सपायरी और सीवीवी, ये 3 इन्फॉर्मेशन से आप हजारों करोड़ों का कुछ भी करते रहिए। बाकायदे वेबसाइट इस तरह की हैं, हम लोगों ने तो कई वेबसाइट उसमें लिखा है कि ये क्रेडिट कार्ड कितना सिक्योर है, अगर आप इससे ट्रांजेक्शन करते हैं तो 100% सिक्योर है, मीन्स कि आपको पुलिस कभी पकड़ ही नहीं पाएगी। ये 70% सिक्योर है। और ये भी देते हैं क्रेडिट कार्ड की लिमिट क्या है, ये कौन वाला क्रेडिट कार्ड है आपका, ये कोरल है या क्या है, प्लेटिनम वाला। तो ये भी पूरा का पूरा, आप चाहे इंश्योरेंस का डेटा लीजिए, बैंकिंग डेटा लीजिए, डेबिट कार्ड डिटेल्स लीजिए, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, आप वेबसाइट पे तो अब आपको क्राइम की दुनिया तो गजब की हो गई है। अब आप जाइए डार्क वेब में, आपको किसी को असैसिनेट कराना है, किसी का मर्डर कराना है, हायर कर लीजिए मर्डरर। शर्त यह है कि आपको जो पेमेंट है वो बिटकॉइन में जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा, वो मर्डर हो जाएगा। ये भी उसमें शर्त है कि आप मर्डर होने के बाद पैसा दीजिएगा। तो आप बताइए, जब हम और ये क्या है, इस पे मेरा ये मानना है कि पूरी दुनिया में सबको बैठ करके, और ये जो क्रिप्टो करेंसी है नंबर 1, इन सब चीज, ये ब्लॉकचेन जो है, देखिए ये टेक्नोलॉजी को तो हम बैन नहीं कर सकते। करेंसी हम अपना भी, मान लीजिए हम ऑर्गेनाइजेशन में तो हम अपने लिए करेंसी बना सकते हैं, लेकिन मेरी सिर्फ एक शर्त है कि आप उसका ऑडिट ट्रेल रखिए। और अगर किसी ने मान लीजिए प्लेटफॉर्म बनाया, क्रिप्टो करेंसी का एक्सचेंज बनाया, तो जो एक्सचेंज का ओनर है उसका पूरा डिटेल होना चाहिए। हमारा जो एक्सचेंज का ट्रांजेक्शन है वो पूरा हमको जब मांगे एलईए ला इन्फोर्समेंट एजेंसी, पूरा ट्रैक दीजिए कि पैसा अल्टीमेटली बेनिफिशियरी है। और आप कोई भी टेक्नोलॉजी यूज कर लीजिए, जैसे अगर मेरा मेल आईडी कोई यूज करना चाहता है, ये स्पूफ करना चाहता है, तो हमको क्या चाहिए भाई? स्पूफ तो कर सकते हैं, लेकिन स्पूफ किसने किया ये इसकी ऑडिट ट्रेल होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक ऑडिट ट्रेल होनी चाहिए, ताकि हम पकड़ लें। कोई रेगुलेटर नहीं दुनिया में। डोमेन आप रजिस्टर कराने जाइए राहिनी लर्निंग का www.rahinilearning.com, और उसे एड्रेस दे दीजिए आजमगढ़ का, और फोन नंबर दीजिए 999 10 टाइम्स 9 लिख दीजिए, वो एक्सेप्ट हो जाएगा और आपका वेबसाइट भी क्रिएट हो जाएगा। अब राहिनी लर्निंग का नाम दे दीजिए त्रिवेणी सिंह। इसका क्या, किसने ऑथेंटिकेट किया, ये केवाईसी को किसने वेरीफाई किया? एक हम आइडेंटिटी क्रिएट करने जा रहे हैं साइबर स्पेस में, वो आइडेंटिटी फेक केवाईसी पे बन रही है, इसका कोई रेगुलेटर नहीं, इसके कोई लॉ नहीं, कोई कानून नहीं, तो क्राइम तो होगा ही। अब हम तो यकीन कर रहे हैं कि राहिनी लर्निंग है, कि राहिनी लर्निंग तो ये कर रहा है, वो कर रहा है, हमने पेमेंट भी कर दिया, तो चला वो सेंड पे पैसा गया, वो केवाईसी गलत, ये जो वेबसाइट का एड्रेस है वो गलत, हु इज डिटेल्स गलत। तो ये सारी प्रॉक्सी यूज कर लेंगे हम, पता चला कि हम क्राइम करना होगा तो हम इंडिया की क्यों आईपी यूज करेंगे, हम सबसे पहले अमेरिका जाएंगे, अमेरिका से अफ्रीका के किसी घाना में चले जाएंगे, फिर घाना से आपके सिस्टम पे अटैक करते हैं। तो जाइए पुलिस, पहले घाना जाए, फिर घाना से अमेरिका जाए, फिर जाए। मैंने केसेस क्रैक किए हैं जिसमें क्राइम जो लड़का है वो गोरखपुर का था, यहीं का, उसने वीओआईपी कैरियर अमेरिका का यूज किया, जो वीओआईपी कैरियर के लिए एप्लीकेशन डेवलप जो पूरा डेटा रखता था वो सिंगापुर का था। तो ये सारा कनेक्ट होकर के उस लड़के को मैंने अरेस्ट किया, इसलिए कि हमारे हाई प्रोफाइल मामला था। लेकिन हमको कितने 4-5 दिन लगातार हम लगे रहे, इतना कनेक्ट हुए, इतने सब लोगों से बात किए, मेल किए, उसमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन लेकर के किसी तरह हम लोग क्राइम का सब मिला जुला के मेरा ये कहना है कि ये दुनिया बड़ी विचित्र हो गई है। हर आदमी को अलर्ट रहने की जरूरत है, 10 तरह के प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है, अदरवाइज कोई भी आदमी विक्टिम बन सकता है। थैंक यू, थैंक यू शर्मिला जी। हेलो हेलो Hello. Thank you so much, Triveni ji. Thank you so much for your मेरी आवाज आई?
जी त्रिवेणी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने लोगों को साइबर क्राइम के बारे में इतनी जानकारी दी। त्रिवेणी जी, कुछ लोगों के क्वेश्चंस हैं, मैं क्वेश्चन आंसर सेशन यहाँ शुरू करना चाहती हूँ ताकि कुछ लोग जो साइबर क्राइम के बारे में और भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, आप उन्हें बता सकें। पहला क्वेश्चन है सुशील जी की तरफ से। वो बेटा थोड़ा सा बैटरी लाओ, ये डिस्चार्ज हो जाएगा। हर्ष को बुलाओ, वो कर देगा। हाँ बोलिए। तो 6% बैटरी रह गया हमारा। हाँ बोलिए। तो सुशील जी की तरफ से ये पहला क्वेश्चन आया है। वो लिखते हैं कि अगर किसी की इंफॉर्मेशन लीक हो जाए, ओके, तो कोई गवर्नमेंट लॉ है जो लीक्ड इंफॉर्मेशन की इंफॉर्मेशन देती है या प्रोटेक्ट करती है? देखिए, इंफॉर्मेशन किस तरह के इंफॉर्मेशन, देखिए जो टेक्निकली जो है दो तरह के इंफॉर्मेशन है। एक तो पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन है, जो आपको पर्सनली आइडेंटिफाई करता है, और दूसरा एक सेंसिटिव पर्सनल डेटा है जिसको हम एसपीडी, लीगल लैंग्वेज में एसपीडी बोला जाता है, सेंसिटिव पर्सनल डेटा। जैसे मेरा बायोमेट्रिक्स है, हमारा अकाउंट का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, हमारा सेक्स प्रेफरेंस है, ये सारी चीजें जो है ये एसपीडी है। तो अगर एसपीडी लीक होता है, मेरे से रिलेटेड एसपीडी हो जाता है, लीक हो जाता है, तो उसके लिए तो कानून है, उसके लिए 43 एक्ट है, आईटी एक्ट में 43A कैपिटल ए, और उसमें 5 करोड़ तक फाइन हम कंपनसेशन मांग सकते हैं। इसके लिए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कोर्ट होता है। वो स्टेट में प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अपने पदेन जो है उसके चेयरमैन होते हैं। वो अदालत होती है, उसको सिविल कोर्ट का पावर होता है, 5 करोड़ तक कंपनसेशन मांग सकते हैं। लेकिन अब जैसे मेरे से रिलेटेड मेरा नाम, मेरा फोन नंबर अगर किसी के पास चला गया तो उससे क्या होता है, या मेरा आधार कार्ड का नंबर ही उसके पास है, तो आधार कार्ड के नंबर से हम क्या कर लेंगे? सिर्फ आधार कार्ड के नंबर से आप क्या कर लेंगे, या सिर्फ मेरे फोन नंबर से क्या कर लेंगे? इस पे अभी प्राइवेसी एक्ट बिल तैयार है, वो पार्लियामेंट में उस पे जो सेलेक्ट कमेटी है उसके सामने रखा गया है। ये बिल जल्दी पास हो जाएगा। तो आप जैसे अभी जीडीपीआर है यूरोप में, जीडीपीआर का देखिए आया, वैसे ही हमारे इंडिया में भी प्राइवेसी एक्ट जैसे ही पास हो जाएगा तो कोई भी इंफॉर्मेशन हम जितना चाहेंगे वो इंफॉर्मेशन शेयर होगा। हम जितना चाहेंगे उतना ही इंफॉर्मेशन जो हमारा इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर रहा है या स्टोर कर रहा है उसकी अकाउंटेबिलिटी तब फिक्स होगी। आज की डेट में अभी नहीं। जी त्रिवेणी जी, थैंक यू। दूसरा क्वेश्चन है त्रिवेणी जी, इन्होंने अपना नाम नहीं दिया है, लेकिन इनका सवाल है कि जब हम अपना पुराना फोन कई बार बेचते हैं, राइट, जब हम नया फोन लेते हैं तो हम पुराना फोन बेचते हैं, तो क्या हमें उस फोन को, टू बी ऑन सेफर साइड, उस फोन को बेचना नहीं चाहिए या फिर उसको डंप कर देना चाहिए? मतलब हम इसको कैसे हम अपने इंफॉर्मेशन, क्योंकि कहीं ना कहीं फोन में हमारा शायद कुछ डेटा रह जाएगा जो किसी के हाथ लग जाए तो हार्मफुल हो सकता है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, बहुत ढेर सारी टेक्नोलॉजी है, ई डिस्कवरी या डेटा डिलीटेड भी हम रिकवर कर लेते हैं फॉरेंसिक टूल से। तो चांसेस ये हैं कि जैसे आपने मोबाइल फोन बेचा, वो आदमी अगर इस सारे डेटा, अगर मान लीजिए कोई आपने पिक्चर या कोई मैसेज डिलीट किया, उसको भी हम रिकवर कर लेंगे। तो मेरा ये मानना है कि आप जरूर बेचिए, लेकिन वाइपिंग टूल्स फ्री में भी आते हैं, कमर्शियल वाइपिंग टूल्स आते हैं। आप 2-3 टाइम्स उसको वाइप कर दीजिए ताकि वो ओवरराइट हो जाए, वो पूरा डेटा उसमें ना रहे, नंबर 1। नंबर 2, जितने भी आपके जैसे मेल आईडी सबको लॉग आउट करिए, और लॉग आउट यहीं से ना करिए, आप जाकर के किसी डेस्कटॉप पे बैठ करके ये देखिए, अपनी आईडी को डालिए और देखिए उसमें आता है कि किस सिस्टम से ये आपका मेल आईडी अभी ओपन है, क्योंकि मोबाइल फोन में सब कॉन्फ़िगर रहता है, तो उसको जाकर के सब जगह। तो ये ढेर सारे प्रिकॉशन आपको लेने पड़ेंगे जी। वाइपिंग टूल से वाइप करना, हर जगह से वाइप वो करना, फिर खुद जाकर के रीसेट कर दीजिए, फैक्ट्री रीसेट कर दीजिए। ये करने को जब एकदम 100% सिक्योर हो जाइए तभी, अदरवाइज रिस्क तो रहेगा। आप सब कुछ कर दीजिए तब भी हमको दे दीजिए तो मैं रिकवर कर दूंगा आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिवेणी जी, ये मिधु लिखते हैं कि पनिशमेंट और क्या पेनल्टीज हैं साइबर क्राइम के लिए? देखिए, साइबर क्राइम के पनिशमेंट अलग अलग हैं। अगर कोई साइबर टेररिस्ट है तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक 10 साल की सजा है उसके लिए। अगर मान लीजिए हमारा क्रिटिकल इंफ्रा है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई आदमी इलेक्ट्रिक जो ग्रिड है गवर्नमेंट का, अगर उस पर कोई अटैक करता है, या रेलवे स्टेशन का पूरा मैकेनिज्म है उस पर कोई अटैक करता है, या बैंकिंग सर्वर पे अटैक करता है, तो ये क्या है, हमारा क्रिटिकल इंफ्रा, इस पर किसी ने अटैक किया तो वो साइबर टेररिस्ट हमारे लिए। तो इसमें तो 10 साल की सजा है। अगर किसी ने पिक्चर मार कर दी या कोई पोर्नोग्राफी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी दिया तो उसके लिए 7 साल की सजा है।
अगर केवल एडल्ट पोर्नोग्राफी शेयर किया तो उसके लिए 3 साल की सजा है। तो सजाएं तो पूरा कानून है ना, हर सेक्शन का किस तरह का ऑफेंस है। कि हमारी आईडी अगर आपने चुराई तो 3 साल की सजा है, हमारा अगर फेक आईडी बना लिया तो इम्पोर्टेशन का केस है, चाहे 3 साल 4 साल 7 साल 10 साल ऐसे। बोलिए। ओके, सो नेक्स्ट सवाल है कि आउट ऑफ ऑल कॉल इंडिया से हम करने के लिए क्या करना चाहिए हमें कि हमारा नंबर बीच में कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ये विपिन जी लिखते हैं, विपिन चंद्र गोयल। मतलब इन्होंने लिखा है आउट ऑफ इंडिया का कॉल आने पर क्या करना चाहिए। नहीं, ये पूछना चाहते हैं कि अगर हमें, जैसे आजकल देखा है आपने, कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो हमको बोला जाता है कि ये कॉल पाकिस्तान से उठाना मत वरना आपके सारे अकाउंट्स खाली हो जाएंगे। तो इनका पूछने का मतलब है कि अगर कोई आउट ऑफ इंडिया का कोई कॉल आता है तो हम क्या करना चाहिए। देखिए मैं बता रहा हूँ, आपका इंडिया का कोड है 91, तो 91 छोड़ के अगर कोई भी कॉल आती है तो या तो क्रिमिनल्स कॉल कर रहे हैं या आपका कोई नॉन आदमी कॉल कर रहा है। तो आप देखिए जैसे 92 है तो आप देख लीजिए, गूगल कर लीजिए 92 कहाँ, तो पता लगा पाकिस्तान है। तो क्या 92 का कोई है आपका जान पहचान का जो पाकिस्तान में रहता है या दुबई में रहता है? अगर 977 है तो क्या वहाँ नेपाल में कोई रहता है? तो अगर नहीं रहता है, +1 से कोई कॉल आ रही है तो क्या अमेरिका में कोई आपका दोस्त मित्र रहता है? नहीं आ रहा है, इसका मतलब हो सकता है बेवकूफ बना लेगा। तो थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। दूसरा, इंडिया में एक लॉ है, ये है कि इंटरनेट टेलीफोनी हमारे नंबर पे नहीं कर सकता कोई आदमी, नंबर से नहीं। इंटरनेट टेलीफोनी तो चलेगा, जैसे हम फेसबुक मैसेंजर से आपको कॉल करें वो लीगल है। अगर हम व्हाट्सएप टू व्हाट्सएप कॉल करें वो लीगल है, लेकिन व्हाट्सएप से हम आपके नंबर पे कॉल नहीं कर सकते, वो इलीगल है। तो ये सब भी चीज देखनी पड़ेगी। पहले तो ये चलता था जब प्रीमियम रेट फ्रॉड होता था, जिसमें 92 से मिस कॉल आते थे, और जैसे आप रात में 1 बजे और 2 बजे जब मिस कॉल को आप डायल करते थे तो वो क्या है कि अब ये लंबी कहानी है। कुल मिला के आप दूसरे जो कंट्री के कोड है उस पे अगर आपका कोई नोन आदमी नहीं रह रहा है या कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन या कोई बिजनेस आपका एसोसिएट्स नहीं है या कोई ट्रेडिंग नहीं कर रहा है, तो क्या फायदा उठाने से, मत उठाइए। जी, थैंक यू त्रिवेणी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीयूष झा एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वो लिखते हैं कि उन्होंने एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करने के लिए ईएमआई ली और उसका पेमेंट किया, लेकिन उसके बाद अब इंस्टीट्यूट वाले फोन उनका नहीं उठाते हैं, मतलब वहां पर कोई कनेक्ट नहीं हो पाता है उनका। तो अब उनको क्या एक्शन लेना चाहिए टू स्टॉप द ईएमआई फर्दर? तो ये आप ईएमआई तो पहले तो बैंक में जाकर के आप ब्लॉक करा दीजिए। ईएमआई तो आपके अकाउंट से जा रहा है, तो पहले ही जाकर के ईएमआई को ब्लॉक करा दीजिए, नंबर 1। दूसरा, पुलिस में जाकर कंप्लेंट कीजिए कि फ्रॉड, ये कोई फ्रॉड एंटिटी है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल करके ना सर्विसेज दे रहे हैं ना कुछ, ईएमआई भी जा रहा है। तो बहुत ही सिंपल है, पहले से इनको अपना अकाउंट जाकर ब्लॉक कराएं। जो ईएमआई का आपने साइन किया होगा बैंक में, उसका अकाउंट पहले तो वो खत्म कराइए, उसके बाद पुलिस में कंप्लेंट करिए, फिर पकड़े जाएंगे वो। ओके, सो निरंजना पूछ रही है त्रिवेणी जी कि इज डॉक्सिंग डायरेक्टली पनिशेबल इन इंडिया? क्या डॉक्सिंग इंडिया में पनिशेबल है? तो नहीं, ये तो देखना पड़ेगा ना कि डॉक्सिंग किस नेचर का है, ये किस नेचर का फ्रॉड है, ये आपको देखना पड़ेगा। देखिए, सारा डॉक्सिंग थोड़ा ये है कि गलत ही है, लेकिन जो अगर फ्रॉडुलेंट है, इंटेंट देखा जाता है, पर्पस देखा जाता है, ये सब चीजें देखा जाता है, फिर डिसाइड होगा। ये तो केस जानने के बाद ही हो पाएगा कि ये फ्रॉडुलेंट है कि नहीं। जी, अरिहंत जी का क्वेश्चन है कि हम डेटा क्लोनिंग को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं सर? अब डेटा क्लोनिंग के तो 10 तरह के टूल्स आते हैं। साइबर सिक्योरिटी इतना बड़ा डोमेन है। आपके सीएम है, आपका वो डीएलपी के टूल्स आते हैं, और डेटा क्लोनिंग आप ये भी जान सकते हैं, जैसे मेरे सिस्टम से अगर किसी ने कॉपी किया तो आपके पास 10 तरह के टूल्स है, आप जान जाएंगे कि कब कॉपी किया गया, किस यूएसबी डिवाइस पे कॉपी किया गया, किस टाइम पे किया गया। तो ये अगर आपने कोई इस तरह का इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इस तरह की सर्विसेज ले रखी है तो पता चल जाएगा। या किसी ने मेल किया तो मेल पता चल जाएगा कि ये पूरा ये डेटा आपका किसी ने मेल किया हुआ है। तो यही सब पेरीमीटर सिक्योरिटी आपकी होनी चाहिए। फायर वाला आपको अलर्ट दे देगा, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम लगे हुए हैं, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम वो अलर्ट दे देगा, आपका जो इन हाउस चल रहा है मॉनिटरिंग वो अलर्ट देगा। ये तो करना पड़ेगा ना, ये तभी तो पता चलेगा। क्लोनिंग तो अपने आप में गलत है, अदरवाइज अगर हमने लीगली उसको परमिट नहीं किया तो आप क्लोन नहीं कर सकते मेरा डेटा। ये तो पूरी कंपनियां बैठ गई हैं डेटा क्लोनिंग पे। तो मैं ऐसे लोगों को जानता हूं कि पूरी दुनिया उनकी बर्बाद हो गई, वो लोग सुसाइड कर लिए हैं। 10 साल का डेटा मेरे पास है, मैं आपको बताऊं,
ईमानदारी से बताऊं तो मेरे पास 65 GB का डेटा है जो मेरे लर्निंग से रिलेटेड है, जो मेरा ये करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है, उसमें सब कुछ है। अब वो अगर किसी ने अगर उसको हैक कर लिया और मैं उसको एक्सेस नहीं कर पाऊंगा तो सोच लीजिए मेरी स्थिति क्या होगी, क्योंकि उसको मैं फिजिकल फॉर्मेट में रख ही नहीं सकता। 65 GB डेटा हमने बड़े मेहनत से कलेक्ट करके सारी चीजें रखी, अगर उससे मान लीजिए क्लोन किया, राइट, के लिए मैंने क्या किया ताकि वो सिक्योर रहे, मैंने खुद गूगल ड्राइव पे जाकर के स्पेस परचेज किया है, हमने सेकंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाया है, हमने कई चीजें अलर्ट मोड में रहते, जैसे हमारा ये है कुछ भी कम से कम एटलीस्ट ये हम जानते हैं कि गूगल अगर है और गूगल पे आपने सेकंड फैक्टर हमारा मेल कन्वे का मेल पे अलर्ट आ जाते हैं, आप सेकंड मेल भी दे दीजिए, अल्टरनेट मोबाइल फोन भी दे दीजिए। तो ये सारी चीजें जब आप करेंगे तो अदरवाइज तो कोई भी आदमी तुरंत कर सकता है। ये तो आपको बोलिए। So next question है त्रिवेणी जी, sharing of Aadhaar card and PAN card information for KYC by different wallet provider are safe or not? सेफ है। अगर देखिए सिर्फ केवाईसी आपने दिया है, केवाईसी में पैन कार्ड लगाया, तो अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका पैन कार्ड मुझको मिल जाता है तो हमको क्या पता चलेगा, हमको सिर्फ यही तो पता चलेगा कि ये पैन कार्ड किसके नाम से है। या अगर आप बहुत ज्यादा अगर आप वो क्राइम हो जाएगा, अनऑथराइज्ड एक्सेस हो जाएगा, आप किसी इनकम टैक्स वाले को दे देंगे कि इस पैन से रिलेटेड ट्रांजैक्शन देंगे, तो ये तो क्राइम के डोमेन में अब गया ना। सिर्फ पैन से तो आपको अगर ओपन सोर्स में कुछ जानना चाहते हैं तो यही पता चलेगा कि ये पैन नंबर है, ये त्रिवेणी सिंह है, बस इतना, और इनका डेट ऑफ बर्थ ये और इनका ये एड्रेस ये है, मैक्सिमम इतना ही पता। उससे क्या कर लेगा, जब तक फ्रॉडुलेंट यूज हो, क्राइम करे तो पकड़ा जाएगा। तो इसलिए आप पैन दे सकते हैं, आधार नंबर दे सकते हैं, इसमें कोई डरने की बात जी। So next question है त्रिवेणी जी, is it safe to save our card details in apps like Paytm, Amazon, etc? अब देखिए ये ऐसा ना, पेटीएम अमेजोन पे तो मैं कह सकता हूँ कि करना क्या। देखिए पहला तो आप समझिए कि साइबर स्पेस में 100% सिक्योरिटी है मिथ। यू कांट बी श्योर कि हम जिस पे डाल रहे हैं, जिस पे अपना डेटा हम सेव किए हुए हैं, उस डेटा एंड पे जो बैठा हुआ है वो इसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। लेकिन दुनिया में कुछ तो यकीन करके चलना पड़ेगा, वरना तो आप कुछ भी नहीं कर चले जाइए हिमालय के पर्वत में और जाकर कंदरा में रहिए। तो कुछ तो यकीन करना पड़ेगा, जो ट्रस्टेड नेम है इनको तो देना पड़ेगा, इनको तो देना पड़ेगा। अगर ब्रीच होता है, आप देखिए क्या चीज ब्रीच नहीं हुआ। आप दुनिया में कौन सी ऐसी चीज है ब्रीच? गूगल हो चुका है, आपका आई क्लाउड हो चुका है, और तो छोड़ दीजिए, कोई रिटेलर्स ऐसा नहीं बचा जिसका डेटा मार्केट में ना हो। आप डार्क वेब में जाइए, सब कुछ डेटा है, तो ब्रीच तो हर जगह है। और साइबर सिक्योरिटी ये बताइए, जैसे वायरसेस हैं या मॉलवेयर्स हैं, रोज लाखों की संख्या में बन रहे हैं, तो जो हमने एंटी वायरस लगाया है, जो प्रोटेक्शन मेजर्स हैं, हमने नया कोई वायरस क्रिएट किया तो उसकी तो दवा है नहीं। अभी कोरोना की दवा कहाँ आई मार्केट में? टाइम लगता है ना कोरोना की दवा आने में मार्केट में। वैसे ही अगर हम कोरोना टाइप का कोई मालवेयर बनाए तो तुरंत तो चाहे सिमांटेक हो चाहे कोई भी कंपनी हो, उसके पास इसका इलाज तो है नहीं। अब वो मालवेयर को रीड करेगा, फिर उसका एंटी मालवेयर बनाएगा। तो खतरा तो आपको हर सेकंड है, हर सेकंड है, हर मिनट है। सिर्फ अलर्ट रहने की जरूरत है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि काम भी चलने वाला नहीं है, इसलिए जो ट्रस्टेड ब्रांड है उनके इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का पूरा वो होता है, ये उनकी जिम्मेदारी भी है। बड़ी बड़ी कंपनियां, हजारों करोड़ उनका कैपिटल नेटवर्क है, तो मजाक नहीं करेंगे। लेकिन बिना जाने गूगल पे तो पता नहीं मिलियंस वेबसाइट हैं, आप सब पे ना। इसी पर मैं एक सवाल ऐड करती हूँ त्रिवेणी जी। आजकल लोग गूगल पे और पेटीएम काफी यूज कर रहे हैं, सो गवर्नमेंट आरबीआई के हिसाब से ये आरबीआई इसकी गारंटी नहीं लेता। तो मैं ये जानना चाहूंगी त्रिवेणी जी अल्टीमेटली की गूगल गूगल पे पे या और पेटीएम पेटीएम की टिप है यूज क्या करना। है कि आपको एक प्लेटफॉर्म देता है, ये सारा का ये कहाँ है, अल्टीमेटली कहाँ से कनेक्टेड है? आपके अकाउंट से कनेक्टेड है, जी, आपके बैंक अकाउंट से कनेक्टेड। अब वो इसलिए लिमिट डाल दी गई है कि भाई 1 लाख से ज्यादा। जब पेमेंट बैंक का लाइसेंस ही आरबीआई ने दे रखा है कि ये पेमेंट बैंक का लाइसेंस है, और पेमेंट बैंक का लाइसेंस अगर आप मांगेंगे तो थोड़ा मिलेगा। आपकी 500 करोड़ प्लस नेटवर्थ होना चाहिए, इसीलिए तो उन्होंने कहा भाई नेटवर्थ रहेगा, ताकि अगर कोई फ्रॉड होता है तो हम इससे रिकवर कर लें। तो गवर्नमेंट की तरफ से डिजिटल पेमेंट को और इजियर बनाने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए करीब 64-70 लोगों को पेमेंट बैंक का लाइसेंस दिया गया है।
अब उनके लिए सिक्योरिटी काउंटर मेजर्स भी डिफाइन कर दिए कि भाई आपको ISO ये फॉलो करना पड़ेगा। उनके कुछ काउंटर मेजर्स बताएं कि आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। अगर वो फॉलो नहीं करते हैं तो उनकी अकाउंटेबिलिटी, वो जेल जाएंगे। अगर फॉलो किए हुए हैं तो मेरा मानना है कि अगर फॉलो किए हैं तो 99% सेफ है ये। तो सर गवर्नमेंट कोई इन पे एक्शन लेगी अगर ये डेटा लीक हो जाता है? बिल्कुल वो जेल जाएंगे। डेटा लीक हो गया, डेटा मिसयूज हो गया, डेटा अगर ड्यू डिलीजेंस देखा जाता है, अगर आपके यहाँ डेटा, अगर मान लीजिए हमने आपको, आप लर्निंग में हमने आपको अपना क्रेडिट कार्ड का दिया या डेबिट कार्ड का इंफॉर्मेशन दिया, वो लीक हो गया, तो हम पूछेंगे ना कि एज ए कारपोरेट आपकी जिम्मेदारी थी क्या, आपका ड्यू डिलीजेंस क्या है, हमारे डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए आपने कौन से काउंटर मेजर्स लगा रखे। तो अगर आपने सेटिस्फाई हमको नहीं किया कि साहब हमने ये लगाया वो लगाया वो लगाया वो लगाया, तो हमको लगा तो आपने मजाक कर दिया हमारे डेटा का पूरा, हम डेबिट कार्ड आपको दिए हुए हैं, ऐसे मजाक कर दिया, तो आप जेल जाइए। इसका मतलब कि आपने ड्यू डिलिजेंस नहीं किया। जो एक देखिए मैं कानून में बता रहा हूँ कि IT एक्ट में यह है कि मिनिमम रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस आपको अपनाना है। अब वो रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस क्या है, वो या तो ISO 27001 है या गवर्नमेंट जो डिसाइड करे। तो हमारी इंडिया गवर्नमेंट ने अभी रीजनेबल सिक्योरिटी RSP बोलते हैं, RSP अभी नहीं डिफाइन किया है, इसलिए हम ISO 27001 में 137 150 काउंटर मेजर्स है। अगर हम 150 काउंटर मेजर्स पे फोकस करें, अगर इतने फोकस कर दे कोई आदमी, तो कभी डेटा ब्रीच होगा ही नहीं, क्योंकि उसमें फिजिकल कंट्रोल भी है, इलेक्ट्रॉनिक टेक्निकल कंट्रोल भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी है, 150 तरह के काउंटर मेजर्स हैं, तो कभी होगा ही नहीं। लेकिन उस ह्यूमन इज द वीकेस्ट लिंक इन साइबर सिक्योरिटी चेन। तो क्या होता है, हम सब कुछ तो टेक्निकल किए और पता चला आप ही ने कॉम्प्रोमाइज करा दिया, आप ही ने अपने दोस्त को दे दिया। मैंने एक ICICI बैंक के लड़की को गिरफ्तार किया था, वो अपने बॉयफ्रेंड को इन्फॉर्मेशन लीक करती थी और वो जाकर के पैसा निकाला करता था। ICICI बैंक से, एक्सिस बैंक के कई लड़के गिरफ्तार हुए जो पूरा डेटा, जो डेटा है ना वही शेयर कर दिया करते थे, इसका बैलेंस कितना, मोबाइल नंबर कितना है, इसका डेबिट कार्ड भी एक दूसरे फाइल में होता है, डेबिट कार्ड क्या है, एक्सपायरी कितनी है, वो सब निकाल करके बैंक से शेयर कर देते थे, पैसा निकाल लेते थे। तो जब ह्यूमन ही कॉम्प्रोमाइज हो गया, हमारा एम्प्लॉय खुद कॉम्प्रोमाइज हो गया, तो आप क्या करेंगे, उसको जेल भेजेंगे। कानून तो बना है, कानून अगर कारपोरेट एंटिटी की जिम्मेदारी है, ड्यू डिलीजेंस नहीं है, RSP नहीं है, तो जो बोर्ड है उसके लोग जाएंगे, जो CEO है वो जाएगा, जो डायरेक्टर्स इमीडिएट डायरेक्टर्स है वो जाएंगे जेल, अगर किसी इंडिविजुअल की जिम्मेदारी है तो वो जाएगा जेल। ठीक है। थैंक यू सो मच त्रिवेणी जी, थैंक यू वेरी मच। आपने लोगों की क्वेरीज को आंसर किया एंड आपने अपना इतना इम्पोर्टेंट टाइम आज व्यूअर्स को दिया। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास टाइम की कमी है, सो थैंक यू सो मच त्रिवेणी जी, and I would like to close this open question and answer session now. So if there are any questions, we will try to handle them later. But now for any kind of contact information for Raini Solution, where you can reach out for any queries related to courses and learning solutions, I would like to share the details. Thank you. Thank you so much, Triveni ji. So if you have any questions or queries regarding the courses and the learning solutions, please connect on to this contact number, which is 95826888520. And the site address is already given, that is rahinilearning.in. You can send your queries on info@rahinilearning.in. So I would like to end this session now. Thank you so much everyone for joining. Stay safe, stay healthy. Goodbye.